Hi everybody, welcome back to our channel named as Dialect Round. Here is Sheenam signing into our channel. So without wasting time guys, let's talk about today's lecture. Guys, मैंने काफ़ी बार ये चीज़ बच्चों से सुनी है, उनको कई बार प्रॉब्लम आती है टास्क टू की स्पेशली स्टार्ट कैसे करना है, टास्क टू को इंट्रोड्यूस कैसे करना है. दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम इन देयर राइटिंग. सो आज का लेक्चर हम इसी के ऊपर लेके आए हैं कि आपके इंट्रोडक्शन को कैसे अच्छे से पैराफ्रेज करना है विद द ग्रेट बैंड स्कोर. So without wasting time, let's start with this. Guys, if I talk about how to paraphrase the introduction of task 2, I'll give you three options for that, which is already I mentioned in the board. You can see that हम तीन तरीकों से अपने introduction को, especially in the task 2, paraphrase कर सकते हैं, उसको versatile बना सकते हैं. The first, if I talk about, that is by using synonyms that we all know with the help of vocabulary words. एक ही word के different word को but with the same meaning हम use कर सकते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे use करते हैं just to crack their required band score of 6 or 6.5. Second method that you can, a little bit upper one that you can use for, that is the by replacing the sentence. Yes, means by changing the place of word भी आप अपने introduction को paraphrase कर सकते हो for the great band usage. And the third one, totally in your own words guys. Yes, this is a very effective method that you can use in your introduction, that you need to trace your language by not changing the demand of the question. So these are the main three methods that you can use for paraphrasing your introduction of task 2. So we'll go with the one by one with the example. Don't worry about that. हम आपको example से ज़्यादा clarity में चीज़ों को बताएंगे कि कैसे इनका band score में फर्क आता है और किसके अकॉर्डिंग आपको कितने बैंड्स मिलते हैं. We'll also find out. So let's start with the first method, which is by using the synonyms, which is the easiest type that you can play with the introduction of task 2. So guys, let's play with the first method, that is with the help of synonyms. You can see from the example, पहले हम example को पढ़ेंगे कि हमारी statement क्या आ रखी है. That is, they are saying modern technology has made it easier for individuals to download copyrighted music and books from the internet for no charge. अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आजकल इतना इजी कर दिया लोगों के लिए किसी भी म्यूजिक को या किसी भी रीडेबल कंटेंट को डाउनलोड करना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. सो यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. नाउ वी जस्ट नीड टू प्ले विद द सिनोनिम्स एंड वी नीड टू प्ले विद द बेस्ट वर्जन ऑफ द अनदर वन. लेट्स सी. अब दिस इज द वर्जन दैट आई क्रिएटेड फॉर यू कि कैसे आप विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम सेम स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर सकते हो अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर के लिए. सो लेट्स सी. फर्स्ट आई प्ले विद द नाउअडेज व्हिच इज आल्सो एक्ट एज अ कनेक्टर. जिसको मैंने रिप्लेस करा था दैट इज हैज मेड, मतलब जिसने कर दिया है. तो प्रेजेंट फॉर्म को शो करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या यूज करा, नाउअडेज, जस्ट टू एक्सटेंड माय स्टेटमेंट. उसके बाद बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एज वी नो स्टेटमेंट में भी उन्होंने क्या बोला था, दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कर दिया है. सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस चीज का कारण है, तो हमने उस चीज को बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कर दिया. नाउ इंडिविजुअल्स की जगह वी यूज मैनकाइंड to download copyright. Now they are saying easier. So this is my benefit that I mentioned in my statement, that mankind gets more benefits from it, which means easier. तो easier एक तरीके से क्या होगा, मेरा advantage. So that's why I replace it with that. उसके बाद that they can easily download music. You can go with that, download copyright music, and books को हमने कर दिया है readable things. You can even go with the paper books, e-books. You can replace according to your requirement. Without any charge, for no charge, we replace with the synonym. So this is the easiest method that we play. और हमने examiner को अपनी variety भी दिखाई है synonyms की, that they can even give you the band of LR, which is lexical resource. So you'll definitely get your desired band score. Don't go with the simple things guys. वो एक last option रह जाता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कैसे चीज़ों को play करें. But if you do practice of such thing, you'll also get your desired band score. And if I talk about that, how much band you'll get it from the help of synonyms or vocabulary, guys, you can crack 6 or 6.5 bands easily if you have this target in your IELTS. तो आप सिर्फ synonyms की मदद से, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं करा, सिर्फ synonym की मदद से ही आप 6 और 6.5 बैंड क्रैक कर सकते हो अपने IELTS Task 2 में. So this is the first method that we need to go with, which is the easiest one, that is with the help of
synonyms. So this is all about this method. So guys, let's play with the another way that how we can paraphrase our introduction in the another way, that is by using the different structure. Yes guys, अब इसमें हमने क्या करना होता है, जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है उसके जितने भी सेंटेंस जो पिछले वाला उसको हमने आगे प्ले करना होता है और आगे वाले को पीछे प्ले करना होता है. दिस इज अ सिंपल वे दैट यू कैन इवन गो विद दैट. कई बार क्या होता है गाइस, पेपर में आपको सिनोनिम नहीं आ रहे होते, आपको नहीं पता चल रहा होता कि इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं, वो क्या भी नहीं पता चल रही. सो यू हैव अदर ऑल्टरनेट, आप अपने सेंटेंस को उसकी प्लेस चेंज करके भी सेम चीजों को बता सकते हो. दैट वी डू विद दिस एग्जांपल. लेट्स सी, वी आर हैविंग द सेम एग्जांपल दैट आई टेक इन द केस ऑफ प्रीवियस वन. सो व्हाट वी डू, सी अब आप एक एक चीजों को ध्यान से देखो. मेरा मेन सब्जेक्ट था मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने लास्ट में रख दिया इम्प्रूव इंटरनेट कनेक्टिविटी. दिस इज ऑल्सो द सेम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मैंने इम्प्रूव इंटरनेट कनेक्टिविटी कर दिया. मिडल में आ रहा था मेरा फॉर इंडिविजुअल्स, उसको मैंने आगे ले आई, दैट इज मैनी पीपल. If you can see now what they are saying, are now को हमने again मैंने present tense में play करा. So with the help of the paraphrasing, with the help of the changing the structure, अब हमने same statement को अपने way में लिखा just with the change of a structure in the same sentence. See, many people that I'm having individuals are now able means they are having this ability that they can do this thing, copyright material from the internet. You can see copyright music and download is obviously used for the internet without having to pay for them because of improved internet connectivity. Same चीजों को हमने वैसे ही बोला. पहला क्या कह रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आजकल लोगों की लाइफ को इतना इजी कर दिया है, स्पेशली जब वो कोई चीज़ को डाउनलोड कर रहे होते हैं, कोई बुक्स को, कोई रीडेबल कंटेंट को, और बिना किसी चार्ज के. और उसी स्टेटमेंट को हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया कि आजकल काफ़ी लोगों के पास ये एबिलिटी है कि वो कोई भी कॉपीराइट मटेरियल ऑब्टेन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट और बिना किसी चार्ज के, क्योंकि उनके पास एक इम्प्रूव्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी है. तो सेम चीज़ गाइस, क्या आपको लग रहा है कि मैंने कुछ चेंज करा? So with this even you can show the quality of your writing to your examiner, that if you still do not have a lot of vocabulary words, you can simply paraphrase your statement and get your desired band score. And this is one of the effective method, or it has more priority than the synonym one. अगर आप इस तरीके से अपने introductions को लिखते हो, definitely you'll get 7 or 8+ band, because this is a very good method जिसमें आपको मौका मिलता है कि आप अपनी ग्रामर को, अपने स्ट्रक्चर्स को आराम से दिखा सकते हो एग्जामिनर को, एंड दे विल गिव यू द डिजायर्ड बैंड स्कोर व्हाट यू डिजायर फॉर. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकंड मेथड व्हिच वी कॉल इट एज अ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस. So guys, this is our last but not the least method. It is very important. If you really use it, you really improve your band score, and the name of this method is your own language. आप अपनी लैंग्वेज में अपनी स्टोरी से भी अपने इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज कर सकते हो. बट एक चीज़ का प्लीज गाइज ध्यान रखना कि आपकी डिमांड नहीं चेंज होनी चाहिए. वट एवर दे आस्क यू इन द क्वेश्चन, आपको सेम चीज़ों को इलेबोरेट करना है, बट इन योर ओन वर्ड्स. सो लेट्स प्ले विद दिस एग्जाम्पल. सेम एग्जाम्पल I take that. अब इस चीज को हमने ज्यादातर प्ले करा है with the help of synonyms, with the help of paraphrasing, थोड़ा मिक्स एंड मैच करके हमने इस चीज को क्रिएट करा है. सो यू कैन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मैंने रिप्लेस कर दिया है विद द एडवांस इंटरनेट. हैज मेड इट ईजियर का मतलब क्या है कि इसने हमें आसान कर दिया है, मीन्स हमारी एक्सेसिबिलिटी को काफी ईज कर दिया है. हैज इंडीड, इंडीड मीन्स टू बी श्योर, मीन्स देयर इज नो डाउट इन दैट कि एडवांस टेक्नोलॉजी ने आजकल हमें इतनी एबिलिटीज दे दी हैं दैट इट अलाउड मेनी पीपल, मीन्स इट गिव्स ईज टू मेनी पीपल टू डाउनलोड सेम copyright music or content from the internet, that I can use it to download का synonym मैंने use करा without paying from them. सो बिना किसी चार्ज को पे करे. सो सेम थिंग यू कैन यूज बट इन योर ओन वर्ड्स. देखो वही चीज एग्जामिनर कह रहा है, वही आपने और वर्सेटैलिटी दिखाई अपने एग्जामिनर को अपनी लैंग्वेज को थ्रो करके कि ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपकी बात को रखा. सो दिस ऑल्सो हैज अ वेरी ग्रेट वेटेज गाइज इफ यू रियली यूज. इफ आई टॉक अबाउट दैट हाउ मच बैंड दैट यू कैन इवन स्टार्ट विद, दिस इज ऑल अबाउट 6.5 और 7 बैंड्स जिनको रिक्वायरमेंट है वो इस मैथड को यूज कर सकते हैं. दैट इज
in their own language. Guys देखो method हमने 3 करे, कोई 6.5 वाला करा, 7 to 8 वाला करा और 6.5 to 7 बैंड वाला करा, but everything needs a practice. मैं नहीं कहती कि अभी मैंने ये चीज़ें समझाई हैं और आपको पता चल जाएगा, no, everything needs a practice. Practice makes a man perfect, as we all know that. जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, क्योंकि ये चीज़ें गाइस रातों रात नहीं आने वाली, इन चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको चीज़ें बना बना के देखनी पड़ेंगी कि राइटिंग को कितना हम लिखते जाएंगे, हमारी राइटिंग उतनी ही ऑफिशियल, उतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी. सो आई विल गिव यू दैट these 3 methods, but you need to implement that in your daily basis. Definitely one day you'll crack your desired band score with these things. I hope you're going to like this video far, and do comment us in the comment section कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा है और कौन से मेथड्स आपने इम्प्लीमेंट कर लिए हैं. सो डू कमेंट दैट, इवन दैट विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम यू लाइक मोर, और आपने चेंज द स्ट्रक्चर वाला ज़्यादा अच्छा लगा है, या आपको ये वाला इन योर ओन वर्ड जिसमें आपको पूरी फ्रीडम मिलती है कि आप सेम स्टेटमेंट को अपने तरीके से लिख सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर, एंड आई गाइस यू आर गोइंग टू लाइक आवर दिस वीडियो and do subscribe and comment on our channel and share as much as you can. So we'll come up with the new session soon. Here is Sheenam signing out. Take care.